An entrepreneurial mindset helps the individual to think creatively and constantly innovate to solve challenges. While fostering the entrepreneurial mindset, the students tend to understand that failure is just a stepping stone towards the learning opportunity, rather treating as a fiasco. It also teaches us how to be resilient in the face of all the uncertainty and hardship. To impart the important aspects of entrepreneurial skills and to ignite a flame of entrepreneurship among the students, Vishwa Yuva Kendra, in collaboration with K.R. Mangalam University, organized a seminar on fostering entrepreneurial mindsets in the youth on 28 December 2022 at KRMU campus, Gurugram, Haryana. Let us see the glimpses of the program. To bring the entrepreneurial mindset into play, even K.R. Mangalam University also established a KEIC cell, which is a K.R. Mangalam Entrepreneurial Incubation Center, which aims to foster a culture of entrepreneurship on campus. We believe in unlocking our students' creativity to enable them to create the next generation of innovative companies and non-profits to solve some of the most pressing problems facing the nation. And on the same note, this seminar is also an initiative to build insight towards the entrepreneurial mindset, which help the student not only in their bright future, but also make their existence intuitive. We are indeed very happy to have with us the School of Education and the KEIC, which is being headed by Dr. Anshika Prakash and coordinated along with her by Dr. Shivani. Together, we along with Vishwa Yuva Kendra welcome each one of you to the seminar on fostering entrepreneurial mindset in the youth of India, which is being organized today on 28th of December in our campus. Dear students, you all know that the global economy is changing rapidly with fast technological transformations ruling in every industry. You are all here belonging to 11 different schools of K.R. Mangalam University, and you will agree that in each of your field, the technology has come in a big way. Therefore, learning about entrepreneurship encourages collaboration and teamwork. Every student is creative and has unique capabilities. With smart training, you can do better with your talents and imaginative ideas. Students are future entrepreneurs, and by giving them the tools, resources, and expertise for learning about enterprise management, institutions can make a difference like ours in this learning process. Therefore, entrepreneurship education is imparting to you problem-solving skills, and it is all beyond the world of jobs and businesses. These skills will also help you to face challenges to make your life better. You will all agree that right from the school, our education system by and large has always focused on existing body of knowledge rather than creating innovation and entrepreneurial mindsets. What is an entrepreneurial mindset? It is a frame of mind where you can see the big picture, have a big thinking, command professional leadership, have an intrinsic motivation to create some value, and overcome challenges to solve real day-to-day problems. It is encouraging to see that the focus has been shifting since a few years, and now skills have become very important right from school, where the schools are now training the young girls and boys to have an entrepreneurial mindset, which is essential. And for this is necessary to experiment, to make mistakes. Every theory and law that's given has to be experimented and experienced firsthand before it can be invented. You must
be knowing that today schools have tinkering labs. I don't know if you've heard of this word. They are allowed to tinker around and discover a lot of things rather than the teachers giving things plainly in the classrooms. This helps to foster innovative mindsets and take risks. I would like to applaud here the National Education Policy, which has come in our country in 2020, replacing a 34-year-old National Education Policy of 1986, where there is now a possibility for lifelong learning and making you ready for industry and entrepreneurship. The NEP, the National Education Policy, reimagines vocational education, which earlier was considered as something inferior to mainstream. Today, the domain has changed. Entrepreneurship, vocational education are embedded into the mainstream, and things will change in a phased manner. You will not have to now thrive on jobs. You can have your own businesses, your own startups. Please remember, there's nothing that is small. And all this is in light of a global plan, a global agenda, which is the Sustainable Development Goal 4.4. Let me once again welcome each one of you. Let me thank the youth. Please trust us that all of you who made it to the venue today are the choicest one who are going to learn something incredibly new and amazing. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि स्टूडेंट को अब फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी. फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यह है कि स्टूडेंट अपने मन से जो करना चाहे कोर्स में वो कर सकता है. मेरा एक एग्जांपल है कि लिबरल आर्ट्स के साथ इंजीनियरिंग कर सकता है. आप कभी सोच सकते हो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम है जिसमें लिबरल आर्ट्स और इंजीनियरिंग दोनों साथ काम करते हैं. तो हम लोगों ने यहाँ पे 3rd सेमेस्टर के अंदर ये डाला है कि जो आर्ट्स के और सोशल साइंस के बच्चे हैं वो साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे कुछ ना कुछ, और साइंस और टेक्नोलॉजी के बच्चे आर्ट्स एंड सोशल साइंस पढ़ेंगे. ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि आज की डेट में जितने भी आपको जॉब्स लेनी है उन जॉब में सब इंटरडिसिप्लिनरी और ट्रांसडिसिप्लिनरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको. ये NAC का, ये NEP का, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट भी है. जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इससे कि आप लोगों का स्किल डेवलपमेंट कैसे होगा. आप जानते हो स्किल को या एंटरप्रेन्योरशिप को मैं क्या वर्ड यूज़ करता हूँ, पिछली बार भी मैंने यूज़ किया था, जुगाड़. हम लोग बड़े आराम से कहते हैं जुगाड़. तो वो जो जुगाड़ है वो कैसे है? आप जब कोई भी चीज़ कीनली ऑब्जर्व करते हो, कोई चीज़ सोचते हो, देखते हो, तो आप कई बारी जो है अनदेखा कर जाते हो. लेकिन जो अच्छे, जो समझदार, जो इंटरेस्टिंग, जिनको स्किल चाहिए, वो बच्चे हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं. अगर मैं बोल रहा हूँ तो मुझे भी ऑब्ज़र्व करेंगे कि क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है. तो वो ऑब्ज़र्व जो करते हैं, वो कीन ऑब्ज़र्वेशन, उससे कुछ आइडियाज़ आते हैं माइंड में. और वो जो आइडिया माइंड में आते हैं आज की डेट में KEIC के अंदर उसको आइडिएशन बोलते हैं, और उस आइडिएशन से इनोवेशन क्रिएट होते हैं जिसे हम जुगाड़ बोलते हैं. और वो कुछ भी हो सकता है. मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक साइकिल है. अब साइकिल के आगे जो है लाइट लगी होती है. आप रात को जा रहे हो तो लाइट इधर से दिखती है, लेकिन जब क्रॉस पे वो आता है तो इधर से कोई गाड़ी आती है तो उसको नहीं दिखता वो आदमी. तो क्या किया गया, मैंने एक छोटी सी ऐसी लाइट देखी LED की, जो कि स्पोक पे, जो साइकिल की स्पोक होती है उसके ऊपर लगी हुई, और जो जब चल रही थी तो वो खूब अच्छी लाइट दे रही थी. तो इधर से जो भी आएगा उसको भी दिखाई देगा और एक सेफ्टी हो गया. तो एक छोटा सा जुगाड़ है ये. लेकिन ये जुगाड़ जो है आज की डेट में करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का बिक रहा है, और आप भी शौकिया लेते हो उसे, लेकिन ये नहीं सोचते कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है. तो कीनली ऑब्जर्व करने वाला जो बच्चा है या आदमी है, वो हर चीज़ को ऑब्जर्व करता है कि उस जुगाड़ को अपना इनोवेशन में या अपनी जॉब के लिए या अपने स्टार्टअप के लिए शुरू करूं, पहली चीज़. और वो जो है उससे औरों का क्या फ़ायदा होगा. तो हम लोगों ने आपके साथ जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो विश्व युवक केंद्र है, और ये हमारे जो डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स के CEO साहब हैं, इनका काम यही है
CSR में ये इस तरह के बहुत सारे फंडिंग्स करते हैं। तो बहुत सारी फंडिंग्स है, KEIC में भी आपको बताया गया होगा अगर आप लोग गए हो कि ये फंड्स जो हैं आपको मिलने में कोई आजकल देर नहीं लगती। स्टार्टअप्स नीति आयोग देता है, सीड ग्रांट्स मिलती हैं, बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। मेरा आपसे सिर्फ ये कहना है कि आप लोग चीज़ों को ध्यान से ऑब्ज़र्व किया करो, और कोई भी चीज़ करो ना वो पैशन से करो। पढ़ो तो पैशन से, मस्ती करो तो पैशन से, और अगर आप जो है ये सोच जो है ना इसको आप पैशनेट बनाओ। मैं गारंटी से कहता हूँ कि आज अगर आपने ये मेरी बात समझ ली और आपने कोई जुगाड़ ढूंढ लिया तो आप पक्का जो है ये खाली जॉब्स ही नहीं खुद अपना जॉब नहीं करोगे, आप औरों को जॉब्स दोगे। यही मेरी आप इच्छा है सबसे बड़ी कि स्किल डेवलपमेंट में स्किल जो है आपने खुद ही डेवलप कर लिया तो क्या फ़ायदा हुआ। अगर आपने दूसरों को भी स्किल दिया, जैसे विश्व युवा केंद्र देता है, वो एक बड़ी चीज़ है, तो आप खुद अपने आप में इंस्टीट्यूशन बन जाओगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इंडस्ट्रीज़ के साथ प्रॉब्लम्स को ढूंढो। एक प्रधानमंत्री का अगर आप वेबसाइट पे, पता नहीं आप लोग जाते हो नहीं जाते हो, आप प्रधानमंत्री की वेबसाइट पे जाइए और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। लोग उसमें क्वेश्चन डालते हैं और वो डाल देते हैं जी इसका कोई सोल्यूशन दो। उसके सोल्यूशन पे दिमाग लगाइए, क्या पता आपका कोई सोल्यूशन ऐसा हो कि आप भी मन की बात में भी आ जाओ और साथ में वो जुगाड़ भी बन जाए। और ये जो हमारा 5 गांव के साथ जो हमारा MOU हुआ है, इसके अंदर आप वहाँ लोगों को सिखाओ और वहाँ लोगों से सीखो, और हो सकता है कि उस गांव के लिए आप कुछ ऐसा करो स्किल डेवलपमेंट कि वहाँ के लोगों की भी आमदनी बढ़े, वहाँ के लोग भी जो है एम्प्लॉयमेंट उनका बढ़े। तो ये सब चीज़ें आपको खाली सोचनी है, कीनली ऑब्जर्व करनी है और उसको आइडिएट करना है, इनोवेट करना है, और उसके बाद जो है उसको एज ए स्किल के तौर पे एंटरप्रेन्योरशिप में या स्टार्टअप में या जो भी आपको अच्छा लगता है किसी दूसरे को सिखाने में आप यूज़ कर सकते हो। धन्यवाद। मैं केवल 2 उद्देश्य आपको बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ, और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सोशल एस्पेक्ट है, एक इंटरप्रेन्योरल एस्पेक्ट है। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। मैं आपसे सिर्फ ये आग्रह करना चाहता हूँ कि जो 5 गांव ने हमारे ये इंस्टीट्यूट ने लिया है, KR मंगलम यूनिवर्सिटी ने, आप ज़रूर जाएं, ज़रूर उसको देखें, ज़रूर उसको समझने का प्रयास करें। एक चीज़ ज़रूर देखें कि जब आप रोड पर चलते हैं या कहीं घर से जब आप यहाँ तक आप आए, रास्ते में कई ऐसे बच्चे देखे होंगे जो कि इतना प्रिविलेज नहीं है, जो कि सुख सुविधाओं से जो वंचित हैं, जिनके पास कि पढ़ने का भी सामर्थ्य नहीं है, उनके परिवार को पढ़ाने का भी सामर्थ्य नहीं है। तो क्या हम वही भारत की परिकल्पना कर रहे हैं जिसमें आधे आबादी बिना पढ़े लिखे हों, आधे आबादी पढ़े लिखे हों? क्या हम ऐसे भारत की परिकल्पना कर रहे हैं जिसमें कि हमारे भाई तो रोड पर चल तो रहे हैं लेकिन मुस्कुरा नहीं रहे हैं? क्या हमारी बहनों को आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या हमारी बहनें मेन स्ट्रीम में नहीं आ सकती हैं? आखिर उसको कौन लाएगा जब तक एक हाथ दूसरे हाथ को मदद नहीं करेगा? आज यदि हमारा बायां हाथ काम करना थोड़ा कम कर दे तो क्या हमारा दाहिना हाथ का ये फर्ज नहीं बनता कि उसके काम को भी मदद करें? आज यदि एक पैर हमारा उठना बंद कर देता है तो क्या हम दूसरे पैर के सहारा लेकर हम नहीं चलें या हम वहीं थक कर बैठ जाएं? ऐसा ही हमारा समाज है। ये समझ कर चलिए कि वो जो भाई बहन हैं वो कोई और नहीं है, आपके ही एक दाहिने हाथ हैं। वो हो सकता है कि किसी कारणवश अगर उनके माता पिताजी ने उस तरह की परिवेश नहीं देखा, उस तरह का माहौल नहीं देखा, इसका कारण रहा कि दूसरी पीढ़ी भी तबाह हो रही है। क्या उनके आने वाली पीढ़ी भी इसी गरीबी से, इसी भूखमरी से, इसी तरह से बेरोजगारी से जूझे, या कुछ उसको ऐसा हम करने का प्रयास करें ताकि उसको भी हम सहयोग देने का प्रयास करें? विश्व युवा केंद्र का यही मकसद इस कॉलेज में, इस इंस्टीट्यूशंस में आने का है। आपको एक से एक ज्ञान के खजाने यहाँ भरे हुए हैं। जितना यहाँ जानते हैं सभी एकेडमिशियंस को जितना नॉलेज है उसका अंश मात्र भी नॉलेज हमें नहीं है। फिर भी हम क्यों यहाँ आए? हमारा क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य यही है कि जीवन में आपने एक रिले दौड़ देखा, ऐसे बहुत एथलेटिक्स है, बहुत स्पोर्ट्स है, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा पूजा करता हूँ रिले दौड़ को। उस रिले दौड़ में क्या होता, 4 खिलाड़ी होते हैं और एक खिलाड़ी दौड़ कर जाता है, बैटन दूसरे खिलाड़ी को देता है, फिर दूसरे खिलाड़ी तीसरे को देते हैं,
तीसरे फिर चौथे को देते हैं। यदि एक भी कड़ी कमज़ोर हो गई, हम गोल्ड मेडल नहीं जीत सकते, हम अव्वल नहीं आ सकते। हमें चारों को टीम वर्क में काम करना ही होगा। इसीलिए आज चाहे एकेडमिशियंस हैं, चाहे कोई कॉरपोरेट्स हैं, चाहे कोई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे कोई स्टूडेंट्स हैं, चाहे कोई किसान हों, चाहे कोई दुकानदार हैं, सब लोग यदि मिलकर एफर्ट्स नहीं डालेंगे तो हम केवल बड़े बड़े अक्षर में लिख सकते हैं कि सुनहले भारत का हम निर्माण करेंगे, स्वर्णिम भारत का हम निर्माण करेंगे, लेकिन ये कोरी कल्पना रह जाएगी। इसको यदि सबसे कोई योगदान दे सकता है तो हमारे ये युवा पीढ़ी हैं। युवा पीढ़ी इसलिए योगदान दे सकते हैं कि वो दो पीढ़ी के बीच की कड़ी होते हैं। अपने अभिभावक के प्रति भी वो रिस्पॉन्सिबल हैं, साथ ही साथ आने वाले जो पीढ़ी है उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। जो उन्होंने देखा उनके अनुभव को हमें लाभ उठाना है, उनका अनुभव हमें हासिल करना है। लेकिन आने वाले पीढ़ी के लिए हम क्या परोसने वाले हैं, यही सबसे बड़ा हमारी कामयाबी होगी। हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, हर व्यक्ति अपने आप में स्पेशल है। केवल हम अपने होराइजन को खोल नहीं पाते हैं, हम अपने विजन को बड़ा नहीं कर पाते। जिस दिन हमारा विजन केवल परिवार तक रहेगा, हम केवल परिवार में सिमट कर रह जाएंगे। जिस दिन हमारा विजन एक गांव तक पहुंचेगा कि नहीं, ये गांव के भी भाई बहन हमारे हैं, हम एक गांव के एक अच्छे माने हुए इंसान हो सकते हैं। यदि हमारा विजन एक राज्य होगा, हम राज्य तक का होंगे। और यदि हमारा पूरा देश हो जाएगा, हम देश के संतान हैं और देश के लिए संतान हैं। हमने संस्कृत में वो पढ़ा, हमने वेद पुराण में वो पढ़ा कि अयं निज परो वेति गन्ना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। कहाँ खो गया वो, कहाँ हमारा वो वसुधा को जो हम कुटुंब समझते थे, परिवार समझते थे, उसको हम कहाँ खोए। हम आप लोगों के बीच केवल एक जागृति लाने के लिए लाए हैं। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट इस बात का था कि विश्व केंद्र जो इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम क्यों करता है, उसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि जो भी एकेडमिशियंस के पास नॉलेज है, ज्ञान है, रिसर्च है, उसको फील्ड प्रैक्टिस में हम कैसे तब्दील करें। और हम सभी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के जो लोग हैं, उनके पास हमारी जो भी योग्यता है, जो भी हमने फील्ड में प्रैक्टिस किया है, उसमें हमें जो भी दिक्कतें आई है, वो दिक्कतें आपको ना आए। हम समय रहते आपको बताएं ताकि आप समय रहते आगे बढ़ सके। और जो दिक्कतें हमने महसूस किया, जो वाइस चांसलर साहब ने महसूस किया, जो पुष्पलता मैम ने महसूस किया है, वो गलतियां आपके सामने ना आए, उसी को हम सचेत करने के लिए आए हैं कि जो हमसे बन पड़ा हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने पूरा संसार पड़ा हुआ है, पूरा जीवन पड़ा हुआ है। तो एक सोशल डायमेंशन में आप क्या योगदान दे सकते, एक हमारा ये उद्देश्य था। दूसरा, आज जो इंटरप्रेन्योरशिप की हम जो बात करेंगे, इसके लिए हमारे बीच दो दिग्गज आए हुए हैं जो कि दोनों अपने आप में महारथी हैं। उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन एक दो बिंदु जरूर आप लोगों का ध्यान उस पर आकृष्ट करने की कोशिश करूंगा कि यदि हर व्यक्ति नौकरी खोजेगा तो नौकरी देगा कौन। हर व्यक्ति केवल महीने का ही सैलरी खोजेगा तो हर दिन लाखों करोड़ों कमाएगा कौन। हर व्यक्ति यदि यही देखेगा कि हम इंजीनियरिंग करके किसी एक फैक्ट्री में रोजगार के लिए जाएं तो फैक्ट्री बनाएगा कौन। हमें ये समझना ये है कि जो मैनेजमेंट की जो पढ़ाई हुई थी, मैनेजमेंट का पढ़ाई का मतलब था प्रबंधन, लेकिन उससे पहले जब हम गांव में जाते हैं तो सबसे बड़ा तो इंटरप्रेन्योर हमारे किसान भाई हैं। हमारे किसान वर्षा होगी या नहीं होगी उसको वो नहीं देखते, और वो जुताई करके और बीज को जमीन के अंदर डाल देते हैं। वो बीज पौधा बन के उगेगा या नहीं उगेगा उनको नहीं पता, बारिश होगी या नहीं होगी उनको नहीं पता, लेकिन अपने घर के अनाज को वो खेत में बिछा देते हैं। इससे बड़ा इंटरप्रेन्योर का कोई उदाहरण नहीं हो सकता। पग पग पर हमारे बीच इंटरप्रेन्योर्स होते हैं। हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम कितना अपने आप को सोचते हैं, किस तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हु नोज कि हम लोग एक नहीं 100 लोगों को, हजार लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट देने वाले बने। हम क्यों हमेशा एम्प्लॉय बनने की ही कोशिश करें, एक हमारा आग्रह ये था। लेकिन एक लास्ट में जो मैं आपको बात कहना चाहता हूँ, परसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। उथल पुथल होगा, उतार चढ़ाव होगा। कौन ऐसा बिजनेस है जिसका ग्राफ हमेशा सीधा गया है? कौन ऐसा खेत का उपज है जिसका ग्राफ सीधा गया है? कौन ऐसा विद्यार्थी है जिसने हमेशा मार्क्स ऐसे इस ग्राफ के साथ लाए हैं? कौन ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन है जिसने हर बार मैदान में उतरा है और हर बार गोल ही किया हो? चाहे मेसी हो, चाहे मैराडोना हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे ब्रायन लारा हो, चाहे विवियन रिचर्ड्स हो। हर खिलाड़ी के जीवन में, विराट कोहली जैसे खिलाड़ी भी कभी शतक बनाना उसके बाएं हाथ का खेल हुआ करता था, कभी शतक बनाने के लिए 2-2 वर्ष 3-3 वर्ष इंतजार करना पड़ता है। ऐसे ही हमारा जीवन है, ये जीवन थपेड़ों से ही बढ़ेगा। तो यही हमारी तरफ से एक छोटा सा पैगाम है कि जो समय मिला है
जो विद्यार्थी जीवन बीत रहा है इसमें आप ट्रायल कर सकते हैं, एरर कर सकते हैं। लोग बोलेगा स्टूडेंट है, लेकिन जब आप बड़े हो जाएंगे आपको ट्रायल और एरर का बहुत ही कम संभावनाएं होगी। आप अपने आप को इसी दरमियान आपको खूब जुझारूपन दिखाना है, आगे बढ़ने की कोशिश करना है। थैंक यू सो मच। So I am here to address this topic, fostering entrepreneurial mindset. So first question is, who fosters, right? So educational institutions like K.R. Mangalam universities and there are several other platforms जहाँ पे आप इस तरीके के एजुकेशंस या सेमिनार्स आप अटेंड कर सकते हो। दूसरा, स्टेट और गवर्नमेंट, राइट, यहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स हैं, मेड इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, मुद्रा योजना, अटल योजना। सो देर आर सेवरल स्कीम्स जो कि गवर्नमेंट हमारी ऑर्गेनाइज कराती है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो आप खुद हो। आई मीन ये सारी चीज़ें साइडलाइन हो जाएंगी जब तक आपके अंदर खुद से अंदर आपके एक मोटिवेशन नहीं होगा कि आपको एक्चुअली एंटरप्रेन्योर बनना है। सो हमें लगता है कि ये इतना बड़ा वर्ड है कि एंटरप्रेन्योर बनना है मुझे, मतलब क्या क्या नहीं करना होगा। बट मेरे ख्याल से सबके अंदर वो माइंडसेट होता है। अगर आप आज इस कॉन्फ्रेंस रूम में हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक वो आग है जिससे आप चाहते हो कि मैं कुछ अपनी लाइफ में करूं, कुछ अपने पेरेंट्स के लिए करूं या कुछ सोसाइटी के लिए करूं। आई मीन कुछ तो इग्निशन होगा। सो अगर हम लिटरल मीनिंग के लिए की तरफ जाएं, अगर कि फॉस्टरिंग हो गया, नाउ व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योर। सो एंटरप्रेन्योर में जो मुझे दिखाई देता है वो है होप। आई मीन आप कुछ भी स्टार्ट करते हो एक होप के साथ कि मुझे इसमें कुछ प्रॉफिट हो। आपने शायद बचपन में कुछ एक छोटे बहुत बिजनेस किए होंगे, सब ने किए होंगे। मैं जैसे बचपन में कुछ पेंसिल एक्सचेंज कर लेता था, या मेरे पास अगर रबर नहीं है, शार्पनर नहीं है, तो वो सारी चीज़ें एक्सचेंज करते हो। आप देखते हो कि हाँ मुझे कितना फ़ायदा हो सकता है या कितना नुकसान हो सकता है, वो आप कैलकुलेट करते हो। मुझे इमोशनल प्रॉफिट चाहिए या फिर मुझे मटीरियलिस्टिक प्रॉफिट चाहिए। सो एक थॉट होता है सबके दिमाग में। एक शिव खेड़ा की बुक है हाउ टू सेल, तो उसमें शिव खेड़ा ये बोलते हैं कि आप हर चीज़ बेचते हो, चाहे वो इमोशनल एंगल हो या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो। सो एक रीडिंग हैबिट जो मुझे लगता है कि लोगों के अंदर होनी चाहिए। वो रीडिंग हैबिट से सिर्फ एक चीज़ आपको मिलती है, वो होप मिलता है कि आप एक होप के साथ स्टार्ट करते हो एंड फिनिश करते हो कि हाँ ये मैंने ये बुक पढ़ी है, तो नाउ आई कैन टेल अदर पीपल अबाउट द बुक एंड कि इसमें से मुझे क्या मैंने ग्रास्प किया, राइट। सो होप से एक शुरुआत होती है। नाउ माइंडसेट की अगर बात करें तो बेसिक माइंडसेट क्या होते हैं, जो मैं अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू बताऊंगा कि बेसिक माइंडसेट जो मैंने कोई बिज़नेस शुरू किया था तो मेरा बेसिक माइंडसेट क्या है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको अपने आइडिया को लेके या अपने जो भी विचार है उसको लेके पैशनेट होना है। अगर आप अपने आइडिया को दिन रात जी नहीं रहे हो तो मेरे ख्याल से वो आइडिया आपका नहीं है, या तो पहली चीज़, या तो आपने उस पर कुछ करना है या नहीं, आप डाइसी हो सिचुएशन को लेके। तो फर्स्ट थिंग जो है, अगर आप अपने आइडिया को पूरी तरीके से जी नहीं रहे हो तो दैट मीन्स आप उतने पैशनेट नहीं हो उस चीज़ को लेके। सो पहली चीज़ जो आपको अपने माइंडसेट में चेंज करना होगा वो पैशन को लाना होगा। आप कुछ भी करो, आप अपॉर्चुनिटीज़ हज़ारों हैं। आई मीन पानी एक ऐसी चीज़ है जो शायद 3/4
आपका अर्थ पानी से भरा हुआ है, बट स्टिल लोग पानी का बिजनेस कर रहे हैं, राइट? आप मेरे दादा बोलते थे, एक मुहावरा देते थे कि तू तो समंदर में पानी का बिजनेस करने चला है। तो मैं भी बचपन में मान लेता था कि हाँ, समंदर में पानी कौन खरीदेगा, बट जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे लगा कि समंदर में पानी बहुत ही जेनरिक टर्म है। अगर आप समंदर में खारे पानी का बिजनेस करने चलोगे तो शायद नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप मीठे पानी का बिजनेस करने चलोगे तो शायद वो आपका नीश एरिया है। तो आपको वो एक चीज़, ज़रूरी नहीं कि जो पुराने लोग बोल रहे हैं वो हर तरीके से सही हो, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत ही है, बट हर तरीके से सही होती है या नहीं होती, ये आपको इवेल्युएट करना है। और ये तभी आएगा जब आप मतलब आपके आइडिया पे दुनिया विश्वास करे ना करे, आप ऐसे व्यक्ति होने चाहिए, एटलीस्ट खुद सबसे पहले आपको विश्वास होना चाहिए कि ये आइडिया वर्केबल है। तो वो पैशन जो है, उस तरीके का पैशन आना चाहिए कि नहीं, मैं पानी का बिजनेस कर सकता हूँ और समंदर में ही करूँगा, क्योंकि आप क्लियर हो कि वहाँ पे मीठा पानी नहीं है। अगर मैं वो मीठा पानी लेके आता हूँ तो मैं वो बिज़नेस कर सकता हूँ, लेकिन इस तरीके के पैशन के लिए आपको शायद अपने आइडिया पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड पार्ट ये है कि कंसिस्टेंसी। आपने विश्वास कर लिया, चलो मैं पैशनेट हूँ इस आइडिया को लेके, बट कभी कभी ये होता है ना कि आप मीठा पानी बनाने जा रहे हो समंदर के अंदर। अब आपको ये सोचना है कि एक रास्ता आपने लिया कि चलो ठीक है, मैं दूर से लाके पानी बिजनेस कर रहा हूँ, मगर शायद वो वर्केबल ना हो, आपकी कॉस्ट इतनी मीट ना कर पा रही हो कि आप वहाँ से प्रोक्योर कर रहे हो और जो अमाउंट आपको मिल रहा है वो आपको फाइनली वो आउटकम दे पा रहा है। तो आपको कंसिस्टेंट रहना चाहिए। देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग वन थिंग, राइट? यू हैव टू चूज ऑप्टिमम एंड राइट डायरेक्शन कि आप उस गोल तक कैसे पहुंच रहे हो। आई मीन आप किसी भी चीज़ में जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी तब तक आप उस गोल को अचीव नहीं कर सकते। थर्ड थिंग है रिस्क एपेटाइट। आई मीन बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अनसर्टेनिटी, आप कुछ भी नया करने जाओगे तो अनसर्टन होगा। कॉपी पेस्ट का ज़माना अलग है कि आपने ये चीज़ कॉपी उधर पेस्ट कर दिया, बट कॉपी पेस्ट कोई भी कर सकता है। लेकिन आप कुछ ऐसी चीज़ अगर आपकी रिस्क एपेटाइट होगी चीज़ों को करने की, ठीक है यार चलो कर लेते हैं, एटलीस्ट मैंने कैलकुलेटिव रिस्क, आपने ये टर्म मेरे ख्याल से सुना होगा कि कैलकुलेटिव रिस्क लेना हमेशा सही रहता है। लेकिन वो कैलकुलेशन कौन करेगा? वो कैलकुलेशन आपको करना होगा कि मेरे पास एक्स अमाउंट है, ये मेरा प्रोसेस है। तो इस कैलकुलेशन को ही रिस्क एपेटाइट बोलते हैं कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, कितना नहीं ले सकते हो। पढ़ाई करना भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है, राइट? आप शुरू करते हो, बट आपको पता है कि ये पढ़ाई करने के बाद आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि आप शायद उस डायरेक्शन में जो उस एजुकेशन लेवल के लोग सोचते हैं उस तरीके से आप सोच सकते हो कि क्या नीड है सोसाइटी की। अब 5 गांव को गोद लेना शायद मेरे ख्याल से हर इंस्टीट्यूशन नहीं कर रहा है, बट ये इंस्टीट्यूशन कर रहा है जिसमें आप नई चीज़ सीख रहे हो। वहाँ से मेरे ख्याल से 30 to 40% जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ से ही एक नया वेंचर लेके निकलेंगे। आई एम टेलिंग यू, बिकॉज आप जब किसी फील्ड में जाते हो, किसी फील्ड वर्क में जाते हो, आप नई चीज़ें ऑब्जर्व करते हो। मे बी क्लासरूम एनवायरनमेंट आपके लिए वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है। कुछ लोगों के लिए फील्ड वर्क, जैसा सर ने बताया था कि फील्ड वर्क उनके लिए बहुत ही इग्नाइटिंग होता है, उनको शायद क्लासरूम एनवायरनमेंट में इतना मज़ा नहीं आता। तो इस तरीके की चीज़ें, रिस्क एपेटाइट होना एक माइंडसेट आपका दिखाता है कि आप एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के हो। देन लीडरशिप। सो लीडरशिप क्वालिटी इज समथिंग विच इज़ इनबिल्ट। वो सबके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। तो लीडरशिप क्वालिटी को मैं कैसे डिफाइन करता हूँ? शायद स्टेज पर प्रेजेंटेशन देना या फिर ग्रुप डिस्कशंस के अंदर सबसे पहले बोलना, ये सब लीडरशिप क्वालिटीज़
मेरे लिए जस्टिफाई नहीं करती। मेरे लिए क्या है कि लीडरशिप क्वालिटी, जब आपका टाइम आता है तो आप अपनी बातों को कन्वे करो, और आपको जो टास्क दिया गया है आप वो टास्क को कंप्लीट करो कैसे भी। आई मीन इसका कोई एक पैटर्न नहीं है। आपको मेरे लिए लीडर वही है जो अपना काम ख़त्म कर लेता है। आपकी एक टीम है, आपकी टीम में आपको टास्क मिला है कि आपसे इनसे काम कराना है। आपको वो काम आता नहीं आता है, लेकिन आपको ये अपॉइंट करना है कि कौन सा सही बंदा है जिसको आपको ये टास्क देना है। अगर आपने इसमें कुछ गड़बड़ करी तो शायद आपकी लीडरशिप क्वालिटी पे क्वेश्चन आएगा। सो मेरे लिए वही लीडर है जो आपको आपका काम जो करवा लेता है, वो मेरे लिए ट्रू लीडर है। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज रिजिलियंट। फेलियर एक्सेप्टेड फैक्ट है। आप सबसे ज़्यादा सीखते हो अपने फेलियर से, राइट। मैंने कभी भी अपनी सक्सेस से नहीं सीखा है, क्योंकि सक्सेसफुल जब आप होते हो तो बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर देते हो आप। शायद वो लाइफ लर्निंग लेसन्स आपको नहीं मिलते, लेकिन जब आप फेल होते हो तब आप 5 पॉइंट्स 6 पॉइंट्स निकालते हो कि यार कहाँ पे गलती हुई, या फिर क्या प्रॉब्लम थी, या अगर लेट से आपकी बैक आई तो आप आइडेंटिफाई करते हो तो कि मैंने जो पैटर्न या फिर जो सिलेबस में जो टॉपिक्स मैंने सोचे थे क्या वो सारे कवर किए क्या। तो आप फेलियर से सबसे पहले सीखते हो। तो अपने फेलियर को कभी इग्नोर मत करो, और फेल होने के बाद अगर आपने दोबारा से ट्राई नहीं किया तो वो आपके माइंडसेट को बहुत दिखाता है कि आपका एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट नहीं है, और आपको ये चीज़ करना है। अगर आपको ये स्किल डेवलप करनी है तो ये 5 चीज़ें बेसिक जो हैं वो मुझे लगता है बेसिक नेचर में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, कुछ अब मेरे ख्याल से बातें ज़्यादा हो गई हैं, हम एक क्विज़ करते हैं, राइट। ये स्क्रीन पे अब आपको ये माइंडसेट बताना है कि कौन सा माइंडसेट है। सो फर्स्ट वन इज, अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। पैशन, यस, somebody said just okay, yeah. And second one, so first one is passion. Now हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। रेजिलियंस, जब तक आप हारोगे नहीं तब तक जीतोगे कैसे। नाउ थर्ड, अब कुछ हमने अभी कुछ माइंडसेट्स की बात करी है, अब हम कुछ दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यदि आप इसको एक सिस्टेमिक रूप में देखें, then there are 3 other elements which an entrepreneur needs to be aware of, right? And हमारे काम में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के काम में हम लोग इस पर बहुत एम्फेसिस देते हैं। And we have seen over hundreds of thousands of small businesses, पिछले 40 साल में हम लोगों ने करीब 2.5 लाख लोगों को छोटे छोटे बिजनेस लगवाए हैं, खासतौर से रूरल एरियाज में, राइट। तो हम लोगों ने ये देखा है कि एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी जो है वो लगभग हर किसी में होती है। इनफैक्ट देयर इज अ सेइंग, एवरीवन इज नॉट एन एंटरप्रेन्योर बट एनीवन कैन बी एन एंटरप्रेन्योर, राइट। एंड यू नीड टू हैव दिस बिलीफ। सो व्हाट वी फोकस ऑन अ लॉट एज एन ऑर्गेनाइजेशन आर द अदर 3 एलिमेंट्स। एंटरप्रेन्योर के साथ एंटरप्राइज, कि किस तरह का बिजनेस है, किस तरह का बिजनेस सक्सीड कर सकता है, वो जानने के लिए हम लोग बहुत मदद करते हैं लोगों को। एंड देन एक और स्तर है जिस पर हम काम करते हैं, विच इज़ इकोसिस्टम। इट्स द थर्ड ई। सो द फर्स्ट ई इज एंटरप्रेन्योर, यू योरसेल्व्स। द सेकंड इज द एंटरप्राइज, कि आप क्या बिजनेस करोगे। द थर्ड ई इज द इकोसिस्टम। आप लोगों ने सिलिकॉन वैली का नाम सुना होगा। Why are so many entrepreneurs why do so many people set up businesses in Silicon Valley, or Bangalore, let's say, is India's Silicon Valley?
And why do so many of them succeed? It's because they're entrepreneurs. That's the first E. The second E is that they obviously have a business. They have a business idea, an enterprise. But the third is of huge importance, which is the ecosystem. And this is where the responsibility doesn't lie on you. The responsibility lies on organizations such as ours. Vishwa Yog Kendra has done remarkable work in this. Universities, business and industry, उनकी जिम्मेदारी है कि इस तरह का इकोसिस्टम क्रिएट करें. बैंक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स. इनफैक्ट स्लाइड्स में मैं आपको दिखाऊंगा, हम लोग जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करते हैं तो वी क्रिएट समथिंग कॉल्ड अ डिस्ट्रिक्ट एंटरप्रेन्योरशिप कोalition. उसमें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, बैंक्स, NGOs, academic institutions, everyone comes together to create an ecosystem. Without wanting to go too much into detail on that, and having said कि इकोसिस्टम लेवल पर आपकी जिम्मेदारी नहीं है, देयर इज वन रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप लोग एक चीज़ के लिए जिम्मेदार हो इकोसिस्टम के स्तर पर, और वो ये है कि आप डिमांड करें. प्लीज़ डिमांड सर्विसेज फ्रॉम द इकोसिस्टम. अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा चेंज हुआ है, आई वुड से पिछले 8-10 साल में, बट अनफॉर्चुनेटली आवर सोसाइटी इज सच दैट यंग पीपल लाइक यू, let's say 90% of the young people like you have been taught that they need to receive, right? They should not demand. And if you want to be an entrepreneur, ये आपको change करना पड़ेगा. आप system को समझो, right? कि आपकी मदद करने के लिए in your entrepreneurial journey, where are the resources available, who are the people who can help, and please demand, right, that they do so. The fourth E, incidentally, there is a fourth E, which is economy, right? Which we, really can't do too much about, right? There are policy level decisions that the government takes. There is investments that are being made, particularly by large businesses, etc., that shape the economy. Or at the other end, you have people who are ordinary soldiers of the economy. हम लोग उनको बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स, क्राफ्ट्स पर्सन्स, वर्कर्स ऑफ एनी काइंड. सो दैट्स द लार्जर पिक्चर. बट जस्ट रिमेंबर दोज 4 E's एंड रिमेंबर द सिग्निफिकेंस ऑफ हाउ इम्पोर्टेंट द इकोसिस्टम इज, राइट? जस्ट वेरी क्विकली, डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव्स ग्रुप में हम लोग ये 3 चैलेंजेस, ग्लोबल चैलेंजेस के ऊपर काम करते हैं. उसमें लाइवलीहुड्स is probably what is more relevant to this topic, but we also look at resources and climate. हमारा एक approach है जिसमें हम लोग innovation से लेकर impact तक ideas को incubate करते हैं, उनको try out करते हैं, और ये function हमारे organization के लिए, because we are a not-for-profit organization, is very important. We try and influence others. जो models निकल कर आए हैं, how do you, get other people to adopt that? But I'll move on very quickly. ये इंडिया में कहाँ पर हम लोगों ने प्रोजेक्ट किए 40 साल में. This is something that I'd like everyone to be aware of. Time अगर थोड़ा ज़्यादा होता तो we would have spent a little bit more time on this. But it's very, very important that, we're aware of this. That India is, people say India is many countries rolled into one, but it's at least these 2 countries. There are, on the one hand, right, GDP हमारा बढ़ता जा रहा है, billionaires, startups, unicorns, etc. And, you have some very, very rich people. In fact, people would argue, entrepreneurs lie here. But, उमा शंकर जी ने जैसे बताया था, यदि हम इस भारत को नज़रअंदाज करेंगे, then we're in for a lot of trouble, right? As a nation, as societies, as family, etc. So I'd like you to, bear this in mind. The interesting thing is, और ये भी हमारे organization ने ही नहीं बल्कि बहुत सारे civil society organizations ने दिखाया है, और in increasing numbers now entrepreneurs are showing this, particularly social entrepreneurs, that some very, very big entrepreneurial opportunities lie here, right? यहाँ पर भी
जो है आप एक एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योरशिप की अप्रोच को लेकर बदलाव ला सकते हैं. एंड ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग मुकेश अंबानी ना बनना चाहें, उन्होंने बहुत काम किया है, बल्कि यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढें. राइट, यू विल एंड अप सक्सीडिंग, right, and you would have done a lot of good. You'll be able to change the world, right? So please bear in mind that it's possible to do that. India is a country in which it's very difficult to define who is employed and who is unemployed, right? In fact, करीब 8-9 साल हो गए, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के रिसर्च डायरेक्टर हमारे ऑर्गेनाइजेशन आए थे. उन्होंने बोला था कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का फिगर कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतने प्रकार का एम्प्लॉयमेंट है दैट यू रियली डोंट नो. बट दिस इज अ स्पेक्ट्रम अगेन दैट वी नीड टू बी अवेयर ऑफ. एंड एंटरप्रेन्योरशिप, सॉरी अबाउट द पी, वो जो है इस स्पेक्ट्रम के एंड पर होता है. अगेन बी वरीड अबाउट दिस. इस ग्राफ को यदि आप देखें या डेटा देखें तो इसमें दो जो हैं important characteristics हैं. One is the youth employment rate, जो कि नीले bars में दिख रहा है, and you can see that the unemployment rate, was flat. It's not going down, and then there is a sudden jump. There is a change taking place in the economy which everyone needs to be aware of. Where does the answer lie? The answer basically lies in not looking for a job, right, but looking at other avenues जिसमें आपको not just economic benefits मिले but fulfillment मिले. COVID was a big hit, right, in terms of changing whatever. And therefore, we focus a lot on what we call grassroots enterprises, right, जो कि दिखते हैं या नहीं भी दिखते हैं because people don't understand the importance. 108 million people, which is about 60% of the workforce, are employed in these entrepreneurs. Inclusive entrepreneurship पे हमारा बहुत ज़्यादा focus रहता है. वो जो मैं India versus भारत का example दे रहा था, right? This kind of entrepreneurship lies in that domain, right? How do you get people to more and more people who are excluded to come within the ambit of entrepreneurship? There are 3, और ये थोड़ा सा unusual है, और ये again मैं जो ecosystem की importance बोल रहा था उससे related है. This is not what you need to do, but what we need to do as a nation, right, or as organizations within this to unleash youth entrepreneurship, right? Listening with empathy, right? And therefore, अगर कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है तो उसको मजबूर कीजिए that look, you have to listen to me, you have to understand, what's going through my mind. Solidarity-based innovation. Entrepreneurship, it's typical of entrepreneurship that if dots are not connected, then it's very difficult for people to succeed, right? And a lot of the innovation not of the technology kind, but innovation in terms of processes and systems, हम लोगों ने देखा जब solidarity होती है, when people come together, these could be people themselves, students coming together, or organizations, is when a lot of innovation takes place, and you unearth, it's absolutely important to unearth aspirations. Collective intelligence, again the focus, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन एकला चलो रे, in fact it's almost a paradox, right? Entrepreneurship में एकला चलो रे को valorize किया जाता है, right? That the entrepreneur has to be tough, उनको जो है अपने दम पे काम करना चाहिए, etc. The irony of it is that that is almost always the surest way to run into trouble, right? Because our world is so complex कि उस complexity में यदि आपको कोई successful business चलाना है, then you need what is, this might be a little bit of jargon, but what is now being called collective intelligence, right? How do you gather intelligence on what is happening in the world around you, right? How do you make sense of what is going on?
So as an entrepreneur, be aware of that. It's something that we do. This probably is a good depiction, we believe it's a good depiction of the difference in approach that we are advocating at the ecosystem level, जिसमें कि entrepreneurship पन पे आम तौर पर यदि आप एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की बात करें, चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम्स हो, चाहे एनजीओज काम कर रहे हो, दिस इज़ अ काइंड ऑफ लीनियर अप्रोच दैट इज़ टेकन कि भाई बिजनेस पैकेज क्या है. इनफैक्ट इन विलेजेस यू माइट एक्चुअली, अगर आप अगली बार जब गांव में जाएंगे पूछेंगे कि यहाँ पर बिजनेस लगाने के लिए क्या स्कीम्स हैं, क्या है, पीपल विल से कि डेयरी, मुर्गी पालन, कैंडल मेकिंग फॉर वुमेन, स्टिचिंग एंड टेलरिंग, इस टाइप के जो है पैकेजेस प्री डिटर्मिन हो जाते हैं कि भाई इस तरह का बिजनेस लगाना अच्छा है. आप कम्युनिटी को मोबिलाइज करते हो, एंटरप्रेन्योर्स को आइडेंटिफाई करते हो, उनकी ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग करते हो, बिजनेस सेटअप होता है और थोड़ी हैंड होल्ड हो. इस लीनियर अप्रोच को एटलीस्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है. वी डू नॉट एक्चुअली इम्प्लीमेंट एनी एंटरप्राइज डेवलपमेंट स्कीम्स बिकॉज वी बिकम ग्रेट बिलीवर्स कि एंटरप्रेन्योर को सेंटर में रख कर what we call systemic prototypes, right? What are the processes? ये अलग अलग टाइप के होते हैं. जस्ट आपको उदाहरण देने के लिए, safe mobility was a enterprise solution that came up in मिर्ज़ापुर because वहाँ पर बातचीत करके, जो डीप लिसनिंग की बात हुई थी, उसमें जो स्कूल और कॉलेज गोइंग गर्ल्स थी और उनकी फैमिली में जो लेडीज़ थी, उन्होंने बोला कि यहाँ पर सेफ नहीं है, राइट? इट्स नॉट एज ड्रामेटिक एज मिर्ज़ापुर. मिर्ज़ापुर जो आप लोगों ने सीरियल देखा है उतने बुरे हाल नहीं है, ठीक है, या अच्छे हाल नहीं है जिस तरह से नज़रिए से आप देखो, लेकिन फिर भी हिचकिचाहट होती थी कि भाई हम कॉलेज जा रहे. उस चर्चा से एक सोल्यूशन निकला, विमेन रन बैटरी रिक्शा नेटवर्क, और आज 3 महिलाएं ऐसी हैं जिनको स्टेट अवार्ड मिल गया है, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये सोचना थोड़ा सा मुश्किल था 4 साल पहले कि महिलाएं जो हैं बैटरी पावर्ड रिक्शा चला सकती हैं, और आज वो 17 महिलाओं का नेटवर्क बन गया है, वो पूरा एक बिजनेस के तौर पे जाना जाने लगा. सो एंटरप्राइज सॉल्यूशंस केम जस्ट फ्रॉम दैट अप्रोच ऑफ बीइंग कनेक्टेड. कोई सरकारी स्कीम में उनके लिए एंटरप्राइज डेवलपमेंट का वो प्रोग्राम नहीं था. एंड देयरफॉर द होल अप्रोच इकोसिस्टम बिल्डिंग हम कैसे करते हैं. देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एंटरप्राइजेस, एंड अगेन इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट द बिग मैसेज to all of you is to look around, right? See what kind of businesses are possible. Technology based बहुत सारे enterprises हैं जो कि environment के point of view से भी अच्छे हैं. जो कहते हैं कि बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया, उसको मार्केट कहाँ है, उसको कस्टमर्स कहाँ है, कहाँ सेल करें. मेरा जो बिजनेस है वो कस्टमाइज्ड एनालिटिक्स सर्विस का है. हम इसके साथ में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट, जो कि अमेज़न, मीशो, फ्लिपकार्ट, टैक्सी. जो ऑर्डर्स आते थे वो काफ़ी कम आते थे मेरे पास जब ऑफलाइन मार्केट में था. उसके बाद तो मुझे दिक्कत है कि सेलिंग भी नहीं रही थी. मैंने कहा बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने उसको क्या किया कि अपॉर्चुनिटी में बदल दिया. अपॉर्चुनिटी क्या थी कि मुझे ई कॉमर्स दिखा. मैंने कहा इसमें मैं सभी को सेल कर सकता हूँ. तो ई कॉमर्स इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम गांव में भी रह के कहीं भी ऑल इंडिया और वर्ल्ड में सामान अपना भेज सकते हैं. तो ऐसे हम कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ अपनी सिटी में निवाड़ी में, तो मैं सिर्फ यहाँ पे 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, 500 लोग हैं, उन पे ही सीमित हूँ. अगर ई कॉमर्स में जाता हूँ तो मेरे पास खुला है आसमान कि मैं किसी को भी सेल कर सकता हूँ कहीं पे भी. अभी करीब अमेज़न पे 6 करोड़ कस्टमर्स हैं. 6 करोड़ कस्टमर सिर्फ इंडिया के हैं, और अगर वर्ल्ड की बात करें तो पता नहीं कितने ऐसा. मेरे साथ काम करते हैं जो गौरव हैं, और उन्हें करीब मेरे साथ 1 साल हो गया है. 1 साल में मेरा सारा काम सीख चुके हैं कि मैं कैसे काम करता हूँ. सारी चीज़ उन्हें समझ आती है कि मैं वर्क कैसे कर रहा हूँ. मैं मेजर में प्लान कर रहा हूँ अपना खुद का एक वेबसाइट होगा, एक ऐप होगा मेरी कंपनी का. तो उसके बाद इसको एक ई कॉमर्स साइट होगी जो कि ऑल इंडिया में सेल करेगी. एक अपना मैं ब्रांड बना दूँगा. तो मैंने सोचा कि इंटरनेशनली ट्राई करते हैं. मुझे एक इंटरनेशनल ऑर्डर आया था अभी जो कि यूएस से था, तो मैं सक्सेसफुली डिलीवर कर चुका हूँ.
जब मैंने मशीन खरीदी और अपना सेटअप किया सारा, और काफ़ी उन्होंने ट्रेनिंग भी दी, गाइडेंस भी दिया, जिनकी वजह से मैं आज काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ। ये YouTube पर आप जाएंगे, ये जो अगला वीडियो दिखा रहा है, हर नेम इज काजल परिहार। इन्होंने भी बुंदेलखंड के एक गांव में एक इन्फो कियोस्क का बिजनेस जो है सेटअप किया था। विद दैट आइडिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद यू, इट्स बीन अ प्लेजर, राइट। आई होप यू फाउंड दिस यूजफुल। I would like to first of all thank the chairman of K.R. Mangalam University, Abhishek Gupta ji, the board of management. I would also like to thank the board of management of Vishwa Yuva Kendra. We have Shishir Bajaj ji, who is the managing trustee, and we have Rajat Kumar Narayan ji, who is the chairman. We thank them for their wishes, and because without their guidance also, we cannot go forward. And through Uday sir and to the whole VYK team, you know, they give us constant guidance on what we should do and how we should do it. So we thank both of them. We also like to thank the leadership of K.R. Mangalam University, Professor C.S. Dobi ji, the Vice Chancellor sir, Professor Pushpalata Tripathi ji, the Pro Vice Chancellor, Group Captain Praveen Mahajan ji, the Registrar, Dr. Tanya Gupta, the Dean of School of Education, Dr. Anishka Prakash, Associate Professor of KEIC. We also thank Dr. P.C. Jaina, Dr. Miss Vidhi, Miss Aditi, Miss Neeru, and most of all, we need to thank two particular people here today. Two particular people who've come from really far away, and our two eminent speakers of the day, Shri Shastan Patara ji and Shri Alok Kumar Maurya ji. I think we had a very good range of knowledge. Alok ji being so young, having his young experience, Patara sir having his experience for such a long time. So when we mix new and old, we get something different, right? So I think something must have come out of this program. And let us not leave this program here itself. Not at this point, not at this juncture, because we need to carry on. So I hope एक छोटा सा चिंगारी भी होगा. ज़रूरी नहीं है कि वो हो भी, but एक slide सा हो. You just need to put something to it and it will catch a flame. And K.R. Mangalam and VYK have joined hands with all of you so that we can go towards it. So I thank once again, I thank all of you, and I please be connected to us. Thanks for watching. For more updates, please subscribe to our official YouTube channel and follow us here.